Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all MBBS third year students. Today we are going to start our lecture that is based on chapter number 39 and it is entitled as Important Childhood Virus Diseases. That is the unit 39. It consists of two parts, childhood diseases and viruses that are being transferred by an animal reservoir. So for today we will be trying to covering up the first part that consists of childhood viruses. Before starting our lecture, let's have a look on this table that what are classical childhood 6 diseases. So historically 6 diseases थी जिनकी etiologies अब जो है वो well defined हो गई हैं. वो कौन सी 6 diseases हैं? The first disease is named as measles and the etiology it is caused by measles virus. Second disease is named as scarlet fever and that you know better than me, it is caused by Streptococcus pyogenes. The third disease is rubella and the etiological agent is rubella virus that we are going to cover today. Fourth disease consists of Duke's disease and it is no longer accepted as a distinct disorder nowadays. Fifth disease को हम कहते हैं erythema infectiosum and the causative agent here is parvovirus B19 and the sixth disease is named as roseola infantum and the causative agent are human herpes virus 6 and human herpes virus 7. So if somebody asks you that name 5 or 6 diseases, childhood diseases, you can easily recall this table and the diseases are called by the viruses and certain diseases, one of them is the second disease scarlet fever is caused by a bacteria. The learning outcomes for today's lecture will be by the end of this lecture you will be able to explain the properties and replication cycle of all the childhood diseases causing viruses. You will be able to compare the pathogenesis, replication cycle, clinical features, treatment, lab diagnosis of the childhood viral diseases, and in the end I will request you to outline the preventive plan of the above mentioned viruses. So starting with the introductory points, the important viruses that causes diseases in the children are measles, mumps, rubella. There is slap cheek syndrome that is caused by human parvovirus B19. Measles or rubella में we will find the classical rash, while in mumps we will see the inflammation and enlargement of the parotid gland. The part 2 consists of the viruses with an animal reservoir and the disease is transmitted by animal reservoir and the viruses are named as arboviruses, Ebola virus and rabies virus. So today we are going to deal with 4 types of patients and all of them are in their childhood age, and imagine that you are sitting in the outdoor of Gulab Devi Hospital Pediatrics unit. So a child is brought to the outdoor along with it by his parents and they tell you that there is history of fever, conjunctivitis and runny nose from a few days. On examination of the buccal cavity, you find classical whitish Koplik spots that are being shown here in the diagram. The parents tell to you that the maculopapular rash, जो rash था वो बच्चे के चेहरे से शुरू हुआ था और फिर lower extremities की तरफ गया. On examination, they are classical maculopapular rash. What is your diagnosis and what could be the management and complications of this specific clinical picture? एक हमारे पास बच्चा आया है, हिस्ट्री है उसको बुखार की, इन्फ्लेमेशन है कंजक्टाइवल सैक की, रनी नोज़ है, फीवर है, कॉप्लिक स्पॉट हमने देखे उसको एग्जामिनेशन पे, जब रैश का पूछा तो फेस से शुरू हुआ था और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करना शुरू हुआ था. तो बेस्ड ऑन दिस क्लिनिकल फीचर्स we will diagnose him as a case of measles. What could be the management and complications here? Let's have a look. Starting from the properties of the measles virus, it is a single-stranded RNA virus with negative polarity. It's an enveloped virus along with containing a nucleocapsid that is helical in shape. There is one serotype and humans are the natural hosts.
रेप्लिकेशन साइकिल इसकी किस तरह शुरू होगी? एब्जॉर्प्शन होगी इसकी सेल सरफेस, कैसे होगी? बाय मीन्स ऑफ हीमोग्लूटिनिन। वायरस पेनेट्रेट करेगा, अनकोटिंग करेगा, वायरन आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करेगा नेगेटिव स्ट्रैंडेड जीनोम को इनटू मैसेंजर आरएनए। मल्टीपल मैसेंजर आरएनए अब बन जाएंगे एंड ईच ऑफ देम इज ट्रांसलेटेड इनटू स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन्स। वायरल प्रोटीन्स बनेंगी, हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड वहाँ पे अक्वायर करेगा, असेंबल होगा इटसेल्फ एंड इट विल अक्वायर एनवेलप बाय बडिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसमिशन कैसे होती है इसकी? बाय मीन्स ऑफ कफ, ड्रॉपलेट्स, स्नीजिंग। प्रोड्रोमल पीरियड होता है जिसमें नॉन स्पेसिफिक साइन और सिम्टम होते हैं, उसके बाद इसमें रैश डेवलप हो जाता है। रैश जो होगा वो कुछ दिन बाद डेवलप होगा, मैक्यूलोपैपुलर रैश होगा, सबसे पहले फेस पे जाएगा और फिर प्रोसीड करता है ग्रेजुअली टू द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। पाम्स पे भी जा सकता है और सोल पे भी जा सकता है। रैश जो है वो ब्राउनिश ह्यू या ब्राउनिश डिस्कलरेशन, आफ्टर फ्यू डेज यू कैन सी द ब्राउनिश डिस्कलरेशन। अब इसमें ये होता है कि हर 2-3 साल बाद ये वर्ल्ड वाइड जो है ये मीजल्स कॉज करता है और हर 2-3 साल बाद इसकी आउटब्रेक्स आती हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है। यूएसए 2000 में सीडीसी ने यूएसए को डिक्लेयर कर दिया था मीजल्स फ्री, लेकिन वहाँ पे अब ये कि जो बाहर के ममालिक से लोग जाते हैं, ट्रैवल होते हैं, इंपोर्टेड केसेस हैं, वो वहाँ पे अकर हो सकते हैं। बाकी ये है कि एक हवाइन आइलैंड्स का आपने सुना होगा। अब इसमें ये होता है कि पॉपुलेशन जैसे लेट्स सपोज कि वायरस को हम एक ऐसे पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं जिनका पहले कोई उनका एक्सपोजर ही नहीं हुआ मीजल्स से। फॉर इंस्टेंस हवाइन आइलैंड्स 1800 में वहाँ पे एक एपिडेमिक आ गई थी क्योंकि उनका कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ था, किसी में इम्यूनिटी ही नहीं डेवलप हुई थी, सो इट कॉज्ड एपिडेमिक बाय मीजल्स। मेल नॉरिश चिल्ड्रन को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के पेशेंट्स को करेगा, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ उनके लिए हो जाती है अगर उनको मीजल्स हो जाए। दिस इज़ द रेप्लिकेशन। अब आप ये देखें कि सेल सरफेस पे रिसेप्टर कौन सा है। यू हैव टू नेम द रिसेप्टर्स बाय वॉचिंग दिस डायग्राम एंड बाय वॉचिंग दिस डायग्राम हैव अ लुक ऑन दिस एंड यू कैन ईजिली रिकॉल द स्टेप्स। ये कहाँ से वायरस आया है, किस रिसेप्टर पे अटैच हुआ है, उसके बाद मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस कैसे बनी है, उसकी प्रोटीन्स कैसे बनी है और कहाँ से जाके असेंबली हुई है, वायरस का हेलिकल कैसा न्यूक्लियोकैप्सिड कैसा था उसका, और बडिंग के थ्रू वो सेल मेम्ब्रेन से एनवेलप लेता हुआ बाहर चला गया। रिगार्डिंग द पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल पिक्चर, अब पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स जो हैं वो उनकी लाइनिंग इन्फेक्ट हो जाती है, वायरस एंटर होगा ब्लड में, उसके बाद रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, वहाँ पे जाके रेप्लिकेट करता है, वहीं से ये वाया ब्लड स्किन में आएगा। रैश जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अब हमारे आएंगे जो कि अटैक कर रहे होंगे मीजल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, उसकी वजह से रैश अपीयर होगा। और एंटीबॉडी मीडिएटेड वस्क्यूलाइटिस वो भी इसमें रोल प्ले कर सकता है। जब रैश अपीयर होता है, जैसे रैश अपीयर होगा उसके फ़ौरन बाद ही द वायरस कैन नो लॉन्गर बी रिकवर्ड और पेशेंट भी एक स्प्रेडर का किरदार अदा नहीं करता। तो रैश होने से पहले पहले तक वो स्प्रेड करता है। रैश जब हो जाए तो ना वायरस हम डिटेक्ट कर सकते हैं और ना ही वो स्प्रेड का कॉज बन सकता है। इसमें भी मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स अपीयर होंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स आपको पता है फ्यूजन प्रोटीन्स जो स्पाइक्स पे थी, हमने पिछले वायरसेस में भी पढ़ा था, कुछ फ्यूजन प्रोटीन्स थी स्पाइक्स पे जो कि जिनकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। इम्यूनिटी इसकी लाइफ लॉन्ग होती है, जिसमें एक दफ़ा हो गया उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहेगी। हीमोग्लूटिनिन जो होती है सरफेस ऑफ द वायरॉन की, दैट इज़ द एंटीजन जिसके खिलाफ एंटीबॉडी रोल प्ले करती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है इसमें, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को किस तरह हम डिटेक्ट करते हैं, या ये जो होते हैं ना, कुछ होते हैं चिल्ड्रन जिनमें ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया होता है, जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ की जो नॉर्मल लेवल से कम होती हैं, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उनमें रोल प्ले करती है। मैटरनल एंटीबॉडी पास कर जाती है प्लेसेंटा से, और उसके बाद फिर इसमें अब कुछ जो पेशेंट्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स, उनमें क्या होता है कि प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव ट्यूबरक्लिन टेस्ट इनमें नेगेटिव आता है।
ये क्यों होता है? क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ये सप्रेस कर देते हैं मीजल्स, और इसकी वजह क्या होती है कि CD46 रिसेप्टर पे जाकर ये बाइंड करते हैं। अब जब CD46 पे जाके बाइंड करते हैं तो इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन जो होती है वो सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो रिमेंबर दैट इसमें ये होता है कि अगर कोई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है और उसको मीजल्स हो गए तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा उसमें PPD स्किन टेस्ट रिएक्टिविटी का, ठीक है, और रीएक्टिवेशन हो जाएगी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो वैसे डॉर्मेंट पड़े हुए थे। अब इसमें होता क्या है, मीजल्स जो है रिसेप्टर CD46 पे गए, जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन 12 जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है, और वो ज़रूरी था कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते। क्लिनिकल पिक्चर्स, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 2 हफ्ते तक। प्रोड्रोमल फेज आएगी जिसमें फीवर है, कंजंक्टिवाइटिस है, कॉप्टिक स्पॉट कैन बी सीन। Now what are the complications in the first clinical scenario? क्या क्या complications हो सकती हैं? एनकेफेलाइटिस है, डेफनेस, मेंटल रिटार्डेशन, द चाइल्ड में सफ़र विद मेंटल रिटार्डेशन, प्राइमरी मीजल्स की वजह से भी नमूनिया हो सकता है, या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी उसमें नमूनिया हो सकता है। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एनकेफेलाइटिस हो सकता है इसमें कॉम्प्लिकेशन। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को इन्वॉल्व करे तो उसमें स्टिल बर्थ्स होगा। एटिपिकल मीजल्स भी देखते हैं हम, और एटिपिकल रैश भी देखते हैं। कमिंग टू द लैब डायग्नोसिस, क्लिनिकली एक तो हमने उस बच्चे को डायग्नोस कर लिया, हम उसमें PCR भी कर सकते हैं और एंटीबॉडी टाइटर राइज भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसकी सिम्टोमेटिक देंगे हम। प्रिवेंशन कैसे करते हैं? इसमें लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन आती है, वैक्सीन अफेक्टिव होती है, साइड इफ़ेक्ट इसके कम होंगे। कब देंगे हम वैक्सीन? चिल्ड्रन को देते हैं सबकुटेनियसली 15 मंथ्स ऑफ एज, और बेसिकली मीजल्स, मम्स, रूबेला MMR की वैक्सीनेशन इन कॉम्बिनेशन देते हैं। अब वैक्सीनेशन जो है वो 15 महीने से पहले बच्चों को नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडी जो उस बच्चे में थी वो न्यूट्रलाइज कर देगी वायरस को और रिड्यूस कर देगी इम्यून रिस्पॉन्स को। इम्यूनिटी वेन हो जाती है तो बूस्टर डोज इसमें हम रिकमेंड करते हैं। किल्ड वैक्सीनेशन शुड नॉट बी यूज्ड, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स का थोड़ा सा रोल है, दे मॉडिफाई द डिजीज इफ गिवन टू द अनइम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल्स। अनइम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको इम्यूनाइजेशन नहीं हुई हुई, उसमें थोड़ा बहुत किरदार है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। Now let's have a look on our second patient that is suffering from mumps virus. Mumps virus belong from the family paramyxoviruses. इसमें मीजल्स वायरस आते हैं, मम्प्स वायरस आते हैं, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस आते हैं। अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को। अब आप ये देख लें ऊपर उसके स्ट्रक्चर में राइट साइड में हीमोग्लूटिनिन है, न्यूरामिनिडेज है, फ्यूजन प्रोटीन्स हैं, उसके अलावा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, और एक्सट्रीमली कंटेगियस होगा मम्प्स। The properties regarding mumps virus, they are single-stranded negative polarity RNA viruses, helical nucleocapsid होगा, enveloped होंगे. One serotype is present and humans are the natural hosts. Replication इसकी measles virus की तरह की है. ट्रांसमिशन और पैथोजेनेसिस कैसे होती है? वही रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होगी। विंटर के महीने में ज़्यादा होते हैं, और 30% चिल्ड्रन जो होते हैं वो इनएपरेंट होते हैं, सब क्लिनिकल होंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करेगी, वहाँ से ब्लड में जाएगा, सेलाइवरी ग्लैंड्स तक ट्रेवल करेगा। यू सी द पिक्चर ऑन द राइट साइड, दैट इज swelling of the parotid glands, either unilateral or bilateral. Testes और ovaries को भी involve कर सकती है. Then it can cause the disease of pancreas and involve the meninges. लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होगी इसकी। अच्छा, सबसीक्वेंट केसेस भी आ सकते हैं पैरोटाइटिस के। अब सबसीक्वेंट केसेस पैरोटाइटिस के आते हैं जिनकी कॉज कोई और होती है। वो कॉज क्या क्या हो सकती है? द कॉज कुड बी पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, it may be caused by bacteria, or it may be caused by the stones. Clinical features इसके, incubation period है 18 to 21 days. Patient may present with fever, malaise and anorexia. Swelling होगी parotid gland की, unilateral भी, bilateral भी, और बच्चे की अम्मी आपको बताएंगे कि citrus juice, lemon juice, orange juice पीते ही उसको यहाँ पे बहुत शदीद दर्द होता है।
रैशेज इसमें अपीयर नहीं होते और 1 वीक के अंदर रिजॉल्व कर जाता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस में ऑर्काइटिस है और टेस्टिस को इन्वॉल्व करेगा, ओवरीज को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड अलोंग विद मेनिंजाइटिस। लैब डायग्नोसिस, क्लिनिकल पिक्चर आपको बड़ी प्रेवलेंट है, पीसीआर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं और राइज इन एंटीबॉडी टाइटर। ट्रीटमेंट अब इसकी और प्रिवेंशन सिम्टोमेटिक है, 15 मंथ्स पे आप हम देते हैं मिजल्स, मम्स एंड रूबेला। बूस्टर डोज रिकमेंडेड है 4 to 6 ईयर्स पे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसकी सेम है जैसे हमने पीछे पढ़ी थी। एंड कैन यू नेम द 3 कॉजेज ऑफ एसेप्टिक और वायरल मेनिंजाइटिस? What are the 3 causes of aseptic or viral meningitis? Coming to our case number 3, that belongs from the rubella family. एक हमारे पास बच्चा है, बल्कि 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जिसको रूबेला रैश हुए में और एक बच्चा है जिसको कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम है। रूबेला रैश का जो बच्चा है वो क्लासिकल रैशेस के साथ आएगा, कॉन्फ्लुएंट होंगे, मैक्यूलोपेपुलर रैशेस होंगे। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में माइक्रोकेफली होगी, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होगा एंड देयर आर द प्रेजेंस ऑफ कैटरैक्ट्स। स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ रूबेला वायरस और कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। रूबेला वायरस बिलोंग्स फ्रॉम द टोगा वायरस फैमिली। एक पीस होता है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का, न्यूक्लियोकैप्सिड आइकोसाहेड्रल होगा और एनवेलप्ड होगा। पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए, इसके अंदर कोई देयर इज नो वायरॉन पॉलीमरेज। सरफेस स्पाइक्स होती हैं जो कि हीमोग्लूटिनिन्स की बनी हुई होती हैं और ह्यूमंस आर द नेचुरल होस्ट्स। रेप्लिकेशन साइकिल जो होगी रूबेला की वो किस तरह होगी? अच्छा, अब इसमें ज़्यादा नहीं पता, सिर्फ हम रेप्लिकेशन टोगा वायरसेस के जो अदर मेंबर्स हैं उनकी बेस पे हम ये रेप्लिकेशन फॉलो करेंगे। सेल को पेनिट्रेट करेगा, अनकोटिंग करेगा और जो प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है वो ट्रांसलेट हो जाएंगे सेवरल नॉन स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन पोलियो वायरस एंड रेबीज वायरस हियर इन वन स्टेप। यू आर गोइंग टू आंसर मी दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जब हम पोलियो वायरस पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि पोलियो में और रेबीज में क्या डिफरेंस था यहाँ पे, राइट? अच्छा, अब इसमें ये होता है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पे रोल एक्ट करेगा, रेप्लिकेट होगा, नेगेटिव स्ट्रैंडेड टेम्पलेट बनेंगे, पॉजिटिव स्ट्रैंडेड प्रोजेनी वायरसेस बनेंगी, साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उसके बाद एनवेलप जो एक्वायर हो रहा है बाय द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। जब वायरॉन एग्जिस्ट करता है तो वो अपना एनवेलप लेके एग्जिट करता है। ट्रांसमिशन कैसे होती है इसकी और पैथोजेनेसिस क्या है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होंगे। ट्रांसप्लेसेंटली भी हमने केसेस देखे हैं इसके जिसमें कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम होता है। यूएसए में इसकी इंसिडेंस काफ़ी कम हो गई है, लेकिन इसकी इंसिडेंस कम है और वहाँ पे साइटोमेगेलो वायरस की वजह से जो कंजेनिटल डिजीज़ हैं, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस हैं, वो ज़्यादा हैं। नेजोफेरिंग्स को इन्वॉल्व करता है, लोकल लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगा। इट विल एंटर द ब्लड एंड इंटरनल ऑर्गन्स इन्वॉल्विंग द स्किन एंड कॉजिंग द क्लासिकल रैश। नेचुरल इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होती है और इसी तरह के रैश 2 और वायरसेस बनाते हैं। वो कौन कौन से वायरसेस हैं? दे आर द इको वायरस एंड कॉक्सैकी वायरस। Now let's have a look on the pathogenesis and incubation period. Rubella में incubation period 14 to 21 days का होगा। प्रोड्रोमल पीरियड होगा जिसमें मैक्यूलोपेपुलर रैश हैं फेस पे और फिर एक्सट्रीमिटीज़ पे जाएंगे। पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी होगी। पॉलीआर्थराइटिस का भी पेशेंट कंप्लेन कर सकता है और ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जिसकी वजह से पॉलीआर्थराइटिस हो सकता है। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में क्या होगा? कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में है कि ये टेराटोजन होता है और वो वुमेन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अफेक्ट हों उनके बेबीज़ के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट होगा। हार्ट में पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, आइज़ में कैटरैक्ट और ब्रेन में हमारे पास एनकेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, डेफनेस है, मेंटल रिटार्डेशन है, ये चीज़ें कॉज हो सकती हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जो होते हैं वो दे आर गोइंग टू कंटिन्यूली एक्सक्रीट द रूबेला वायरसेस for months and months, so they may be hazard to the public
और ये जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली शेडर्स होते हैं। अच्छा, ये जो कंजेनिटली इन्फेक्टेड इन्फेंट्स होते हैं इनके अंदर आईजीएम और आईजीजी लॉन्गरली ये परसिस्ट करती हैं, जबकि उनकी मैटरनल एंटीबॉडीज़ डिसअपियर हो भी जाएं लेकिन जो कॉन्टिन्यूइंग शेडर्स हैं उनके अंदर आईजीएम और आईजीजी ज़्यादा प्रोलॉन्ग अरसे तक रहती हैं। लैब डायग्नोसिस हम स्पेसिमेन कौन कौन से लेंगे, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड ले सकते हैं कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए, पीसीआर बेस्ड टेस्ट हैं, राइज इन एंटीबॉडी टाइटर है, और प्रेगनेंसी में हम क्या देखेंगे, आईजीएम की प्रेजेंस और 1:8 टाइटर आईजीजी अगर राइज हुआ होगा। आईजीएम एंटीबॉडीज रिसेंट इन्फेक्शन को डिनोट करेगी, जबकि 1:8 और ग्रेटर टाइटर जो आईजीजी का होगा वो क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा कि इम्यूनिटी है और प्रोटेक्शन फीटस की हो सकती है या नहीं हो सकती। प्रिवेंशन इसकी क्या है, अगेन लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कंसिस्टिंग ऑफ मीजल्स मम्स रूबेला 10 साल के बाद दोबारा देनी चाहिए इसको। लॉन्ग लास्टिंग तो होती है लेकिन हम दोबारा इसको दे सकते हैं। ट्रांजिएंट आर्थ्रेल्जियाज जो है वो हमने देखा है कि वो इसमें कॉज हो सकती हैं, और उसके बाद सबकुटेनियसली ये देते हैं हम चिल्ड्रन को, वो हमने पहले भी पढ़ लिया था। यंग वुमेन में कौन सी कंट्राइंडिकेशंस हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी डिबेट है, राइट। कमिंग टू द लास्ट केस फॉर टुडे। अब आप ये देखें, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जिसके चीक बहुत रेड हुए हुए हैं, एंड एज द नेम इंडिकेट्स इट इज़ व्हाट इज़ दिस, दिस इज स्लैप्ड चीक सिंड्रोम, जिसका नाम है एरिथीमा इन्फेक्टियोसम या 5th डिजीज़, ये 5वीं डिजीज़ है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय पैरवोवायरस B19. So the disease is named as slapped cheek syndrome or erythema infectiosum, and the patient will come to you with fever, runny nose, red rashes on the cheeks, that is named as 5th disease. जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया या प्लास्टिक एनीमिया होता है वो उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है वायरस, एंड द पेशेंट में कम विद हाइड्रॉप्स फिटेलिस। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को हाइड्रॉप्स फिटेलिस के साथ भी ला सकते हैं। नॉन एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होगा ये। अब तक हमने जितने पिछले लेक्चर्स किए हैं उन सब में हमने यही देखा है कि जो नॉन एनवेलप्ड थे दे वर डेजिग्नेटेड एज येलो कलर। रेप्लिकेशन किस तरह होगी, वायरॉन मूव करेगा न्यूक्लियस की तरफ, सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम डीएनए, हेयर पिन लूप्स वहाँ पे इनकी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेयर पिन लूप्स को जो है वो उससे रिजेंबल करता है, और जो इनका डीएनए होता है उसमें ये हेयर पिन लूप्स बोथ एंड्स पे प्रोवाइड करती हैं ये, ताकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो जाके अटैच हो जाए और सिंथेसिस हो जाए प्रोजेनी जीनोम्स की। वायरॉन असेंबल करता है न्यूक्लियस में, और B19 वायरस रेप्लिकेट करता है एस फेज ऑफ द सेल में, स्टेशनरी फेज ऑफ द सेल में। इसीलिए B19 वायरस रेप्लिकेट जब करता है जबकि वो स्टेशनरी फेज में हो, इसीलिए ये रेड सेल प्रीकर्सर्स में तो रेप्लिकेट करता है लेकिन मैच्योर रेड सेल्स में नहीं करता। ट्रांसमिशन इसकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होगी, प्लेसेंटल रूट भी है इसका, और बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है। देयर आर सर्टेन केसेस इन विच पैरवोवायरस B19 was transmitted by blood transfusion. Is it clear until now? अब इसमें ये होता है, उसके बाद फिर ये आ जाएगा इसमें कि B19 वायरस इन्फेक्ट करेगा रेड ब्लड सेल प्रीकर्सर्स एरिथ्रोब्लास्ट को जो कि बोन मैरो में होंगे, राइट। और ये यहाँ पे एप्लास्टिक एनीमिया, एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस किस चीज़ के बनेंगे, वायरस के और आईजीएम या आईजीजी के, जिसकी वजह से रैश हो जाएगा, आर्थराइटिस हो सकता है, और हाइड्रॉप्स फिटेलिस भी हो सकता है। हाइड्रॉप्स फिटेलिस में क्या होगा, मैसिव एडीमा होगा फीटस का, और उस मैसिव एडीमा होगा। क्रॉनिक B19 इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो इसमें डिबेटेबल हैं कि दे आर अफेक्टिव और नॉट। लैब डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, आईजीएम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेंगे और पीसीआर कर सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन जो है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। हाँ, पूल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं उनका अफेक्ट हो सकता है उन पेशेंट्स में जिसमें कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी हो,
ह्यूमन पैरवोवायरस B19 की कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है. Now, why is it named as fifth disease? And what are other four diseases of the childhood? This we have to sort out. Upcoming tasks हमारा आ रहा है. They consist of written assessments consisting of MCQs and SCQs from the unit 37, 38, 39 and 40, and that task is going to be held on 22nd of June. So I wish all of you very best of luck, and in case of any difficulty just ask me. Thank you so much.